الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم لیے آپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہیں. آج بھی حسب معمول ہمارے ساتھ 6 مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 6 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں جن کے درمیان آج کا یہ خوبصورت مقابلہ ہوگا. نہ صرف مقابلہ ہوگا بلکہ ایک بڑی ہی بابرکت، مبارک اور بڑی ہی نرالی جرنی بھی ہوگی جو آپ بھی اپنی اسکرین کے ذریعے اس جرنی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ملاحظہ کرتے رہیں گے. اینیمیشن کے ذریعے ہمارے کنٹیسٹنٹ اپنی لوکیشن شو کرتے رہیں گے اور جیسے جیسے یہ سوالات کے جوابات دیتے چلے جائیں گے ویسے ویسے یہ اپنی منزل تک پہنچتے چلے جائیں گے. منزل کیا ہے؟ بڑی ہی بابرکت، بڑی ہی مبارک ہے. جی ہاں، وہی باب کعبہ کہ جس کو تھامنے کی تمنا ہر مسلمان اپنے دل میں لیے جیا کرتا ہے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج تو ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں گے. ایک کاش کہ وہ بھی لمحات ہماری زندگی میں آئیں کہ ہم حقیقی طور پر بھی اپنی منزل باب کعبہ تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر سکیں. اللہ کریم سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے بابرکت اور مبارک گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام کون سے 3 خوبصورت سیگمنٹس کے درمیان رہے گا. پہلا سیگمنٹ ہوگا شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل. تیسرا اور فائنل سیگمنٹ ہوگا میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. بڑا ہی خوبصورت یہ پروگرام ہوگا. یہ خوبصورت سیگمنٹس اس میں شامل رہیں گے اور ہر سیگمنٹ کے صحیح جوابات دینے والے پروگرام میں ہمارے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے کنٹیسٹنٹس کا تعارف لیتے ہیں، جانتے ہیں کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، باری باری ایک اپنا نام بتاتے چلے جائیں اور یہ بھی بتائیں کیا کرتے ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں. ہمارا طارق جامعۃ المدینہ فیضان کنز ایمان درجہ رابعہ. ماشاءاللہ، 4تھے درجے کے اسٹوڈنٹ ہیں، جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہیں اور ماشاءاللہ نام آپ نے بتایا عثمان اتاری. چلیں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. جی محمد شمویر رضا اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان کنز ایمان میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. اس کے علاوہ کڈس مدنی چینل کا پروگرام 135 ہوسٹ کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. ارے واہ، یعنی آج ہوسٹ جو ہیں وہ ہمارے ہاں جواب دینے کے لیے آ گئے ہیں. جی حنین علی اتاری، جامعۃ المدینہ کنز ایمان درجہ ثالثہ کا طالب علم. ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں حنین بھائی کو بھی. عبد القادر اتاری، درجہ رابعہ، جامعۃ المدینہ کا طالب علم. ارے واہ ماشاءاللہ، عبد القادر بھائی 4تھے درجے کے اسٹوڈنٹ ہیں. ماشاءاللہ، ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں. جی احمد رضا اتاری بن محمد الطاف اتاری، درجہ ثانیہ سے فیضان کنز ایمان. ماشاءاللہ، درجہ ثانیہ 2 درجے کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ. ماشاءاللہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی. جی محمد عبید رضا اتاری، درجہ ثانیہ فیضان کنز ایمان. فیضان کنز ایمان. چلیں جی، آج فیضان کنز ایمان کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہیں. مختلف درجات سے یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں جن کے درمیان آج کا یہ خوبصورت مقابلہ ہوگا. پہلا سیگمنٹ ہوگا، لیکن پہلا سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹس کو بھی بتا دوں، ہمارے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ پہلا سیگمنٹ ہمارا بہت ہی کروشل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ان اسٹوڈنٹس کو، ان کنٹیسٹنٹس کو سفر کروانے کے لیے صرف 4 سیٹس موجود ہیں. 4 فرضی سیٹس جسے کہا جائے، کیونکہ پہلے سیگمنٹ کے اندر ہم اپنے کنٹیسٹنٹ کو کراچی ایئرپورٹ سے جدہ کا سفر کروائیں گے اور وہ سفر ایسے ہوگا کہ پہلے ان سے سوالات ہوں گے. اگر انہوں نے اس سوال کا جواب کم ٹائم میں درست دے دیا تو پھر ان کا یہ سفر ہمارے ساتھ کنٹینیو رہ سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس صرف اور صرف 4 بورڈنگ پاس، فرضی بورڈنگ پاس موجود ہیں. 4 خوش قسمت کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں موجود ہوں گے، ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گے. باقی 2 کنٹیسٹنٹ ہمیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو بہت ہی خیال رکھنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے پہلے یہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. تصور ہی تصور میں سفر، اس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا
सफर की गए जिस पर निसार जान फलागो जफर की गए जिस पर निसार जान फलागो जफर की गए फलागो जफर की गए। वैसे वाकई हकीकी तौर पर जो हुज्जाज सफ़र हज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे आशिकान रसूल माशाल्लाह सफ़र हज इख्तियार कर भी चुके हैं, जब उनकी ज़िंदगी में ये घड़ी आती होगी तो कैसा झूम झूम कर वो भी पढ़ते होंगे कि मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी वो दिन दिखाए, अल्लाह वो लम्हात हमारी ज़िंदगी में भी ले आए। लेकिन आज के इस सेगमेंट में हमारे कंटेस्टेंट के दरमियान पहले राउंड का मुकाबला होगा। तरीक़ेकार ये होगा कि आपके पास ये 6 बोर्ड्स रखे हैं, ठीक है। इन 6 बोर्ड्स पर आपके नाम लिखे हुए हैं, साथ ही साथ कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई है। आपने इस आयत का मुकम्मल रेफरेंस तलाश करना है। तलाश करने के लिए सामने बॉक्स रखा जाएगा, उस बॉक्स के अंदर पारा नंबर भी है, सूरत नंबर भी है और आयत नंबर भी है। आपने सबसे पहले अपनी आयत को जानना है, देखना है, गौर से समझना है और उसके बाद उसका रेफरेंस तलाश करना है। लेकिन ये सारा काम करने के बाद आकर आपने यहाँ पर अपना टाइम भी रजिस्टर्ड करवाना है और जो कम वक्त के अंदर अपना ये काम कंप्लीट कर लेंगे वो 4 खुशकिस्मत इस्लामी भाई हमारे साथ हमारे राउंड में कंटिन्यू रहेंगे, हमारे इस सफ़र में हमारे साथ जाएंगे। बाकी 2 इस्लामी भाई ये खूबसूरत बोर्डिंग पास, फर्जी बोर्डिंग पास हासिल करने में वो नाकाम हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले आपने काम भी कंप्लीट करना है और कम वक्त में भी करना है। इज दैट क्लियर? शुरू करें जनाब, रेडी हैं आप सब? चलें जी, शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। अजीज तक मैंने पायो करो अर्ज के या शागे उमम आ गया आपका मोहताजे नज़र आ गया आपका मोहताजे करम इस गुनाहगार का रखिएगा भरम इस गुनाहगार का रखिएगा भरम इस गुनाहगार का रखिएगा भरम शौक अर्ज बना लो तो चलो शौक अर्ज बना लो तो चलो एक नई नात सुना लो तो चलो सैयदी अंता हबीबी सैयदी अंता हबीबी। चलें जनाब, 2 मिनट और 34 सेकंड लगे हैं, हमारा ये सेगमेंट पूरा हो गया है। इस्लामी भाइयों ने अपनी अपनी कारकर्दगी दिखा दी है, टाइम भी अपना रजिस्टर्ड करवा लिया है। अब किसने अपना काम कंप्लीट किया है, दुरुस्त किया है, ये भी हमें चेक करना होगा। आपने टाइम में तो करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप चारों इस्लामी भाइयों में से अगर किसी का जवाब गलत हुआ तो फिर हमारे 2 कंटेस्टेंट को मौका मिल जाएगा, वरना अदरवाइज ये 2 कंटेस्टेंट हमसे जुदा हो जाएंगे। बारी बारी चेक करेंगे। आ जाइए जी, आपका बोर्ड किस तरफ है? अहमद रजा, बहुत खूबसूरत आयत, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पारा 4 सूरे आले इमरान आयत नंबर 96। जवाब अहमद रजा का बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो अहमद रजा भाई को। इंशाअल्लाह हम बोर्डिंग पास पेश करेंगे। जी, दूसरे इस्लामी भाई हुनैन भाई, अरे वाह, आयत खत्म नबूवत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। पारा 22 सूरे अहज़ाब आयत नंबर 40। क्या लगता है? टोटल दुरुस्त है जी? जवाब टोटल दुरुस्त है जनाब, माशाअल्लाह। हुनैन भाई को भी मुबारक हो। जैसे जैसे
कंटेस्टेंट बढ़ते जाएंगे, शम्बील भाई की और हमारे दूसरे भाई की धड़कन तेज होती चली जाएगी। जी तीसरे भाई का जवाब चेक करेंगे, आ जाएं जी। उस्मान भाई, आयत थी आपकी क़ाला इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। पारा 13 आयत 86 सूरह यूसुफ। जवाब क्या लगता है? बिल्कुल दुरुस्त। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। उस्मान भाई ने भी अपना काम बिल्कुल दुरुस्त किया है और कम वक्त में किया है। चेक करेंगे अब्दुल कादिर भाई को। अब्दुल कादिर भाई के पास आयत तो बहुत मुख्तसर थी, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, पारा 18 सूरह मुमिनून आयत नंबर 3। पक्की बात है, तीनों चीजें दुरुस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पारा आयत सूरत तीनों। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कादिर भाई का जवाब भी 100% दुरुस्त है जनाब, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। शम्बील भाई का जवाब चेक करेंगे। शम्बील भाई, चले कोई बात नहीं, सफर ना सही, लेकिन जवाब पहले सवाल का चेक कर लेते हैं कितना दुरुस्त था। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन, सूरह मुजादिला पारा नंबर 28 आयत नंबर 88। दुरुस्त है जनाब, आयत नंबर 20 होनी चाहिए। चलें जी शमील भाई, जवाब भी थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं जनाब, अगली बार मजीद अच्छी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। उबैद भाई का सवाल भी चेक कर लेते हैं। व अम्मा मन आमना व अमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहू मिन अमरिना युसरा, पारा 16 सूरह कहफ आयत नंबर 20 आपने लगा दी है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं शमील भाई की आपने लगा दी है? अच्छा, यानी शमील भाई ने आपकी और आपने शमील भाई का जवाब लगा दिया है। चलें जी कोई बात नहीं, दोनों भाई मिलके इंशाअल्लाह हमारे चारों कंटेस्टेंट को अलविदा कहेंगे, इन्हें रुखसत करेंगे और इन्हें सफ़रे हरमैन तय्यबैन की आज यहाँ पर एनिमेशन के जरिए होने वाले सफ़र की मुबारकबाद भी पेश करेंगे और दिल छोटा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो शायद कहते हैं ना कि बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे हैं। माशाअल्लाह हमारे चारों कंटेस्टेंट को फर्जी बोर्डिंग पास देंगे। आज ये फर्जी बोर्डिंग पास आपके हाथों में है, अल्लाह वो दिन लाए। हम दुआ भी करते हैं कि आपके हाथों में हकीकी मदीने जाने के बोर्डिंग पास हो और झूम झूम कर आप भी कहें कि मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर हमें मदीने में शाह ने बुलाया है। मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया
مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاغل بلایا ہے آپ کے کرم سے گھوم گئے قیامت میں آپ کے کرم سے دھوپ گئے قیامت میں دیکھو دیکھو رب کتنا خوش خوش آیا ہے دیکھو دیکھو رب کتنا خوش خوش آیا ہے مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ بس ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. دل چھوٹا نہیں کرنا. شمیل بھائی نے بڑی کوشش کی. یقیناً پروگرام کی تیاری میں بہت محنت بھی ہوتی ہے, بہت سارے سوالات کے جوابات تیار کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. امید ہے کہ بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, نئی باتیں سیکھی ہوں گی. آج یہاں تک پہنچے ہیں, انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ مزید ہمارے ساتھ اس سفر میں آخر تک شامل رہیں. آپ کے ساتھ یہ ہمارا مونومنٹ بھی جائے گا, ساتھ ہی ساتھ باب کعبہ نہ صحیح غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے یہ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ بڑھیں گے, ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ہم اپنے چاروں کنٹیسٹنٹ کو مبارکباد دیں گے کہ جنہوں نے آج کا یہ مقابلہ پہلا راؤنڈ یہ جیت لیا ہے اور پہلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ان کے لیے بورڈنگ پاس بھی جاری کر دیے گئے ہیں, سیٹس بھی لگا دی گئی ہیں اور اب ان کا سفر ہوگا کراچی ٹو جدہ. کیسے ہوگا آئیے ذرا اسکرین پر دیکھتے ہیں. بڑی امید گئے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید گئے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید گئے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی
इंशाअल्लाह मदीने हम भी जाएंगे। इंशाअल्लाह ये सफर जारी रहेगा। हमारे चारों कंटेस्टेंट को बहुत बहुत मुबारक हो। जद्दा एयरपोर्ट पर आपका जहाज लैंड हो चुका है। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ नाजरीन से बात करते हैं। तारीख मुल्तान मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से हाजिर हैं हम, सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। यूसुफ भाई हमें माशाल्लाह से आपके सिलसिले की बरकत से मक्के में हाजिरी का तरीका, उम्रे का तरीका बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे हमें उम्रे का तरीका भी आ गया है, सही का तरीका भी आ चुका है। अभी रियल में मक्का नहीं देखा, सिर्फ टीवी पर ही देखा है। अब दुआ फरमाए अल्लाह पाक हमें भी जल्द मक्के की और मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी जल्दी जल्दी मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए, और आपके सदके अल्लाह हमें भी फिर मदीने और मक्के की बहारें देखना नसीब फरमाए। बहुत सारे आज़मीन के लिए ये बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है। बहुत सारे ऐसे सफ़र हज करने वाले, सफ़र उम्रा करने वाले ज़ायरीन होते हैं कि जो हज के लिए और उम्रे के लिए सफ़र ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि जिन्हें रोज़ देखते हैं, रोज़ उनकी ज़ियारतें करते हैं वहाँ पर, लेकिन पता नहीं होता, मालूमात नहीं होती कि ये कौन सी बाबरकत जगह है, इसका नाम क्या है। तो इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी नई मालूमात आपको सीखने का मौका मिलेगा, और बिलखुसूस हरम काबा के अंदर जो मुक़द्दस और बाबरकत मकामात हैं, इंशाअल्लाह उसकी हम रहनुमाई भी करेंगे। हो सकता है कि कुछ इंशाअल्लाह उसके हवाले से मालूमात भी फराहम करेंगे। तो आपने हमारे साथ शामिल रहना है, और साथ ही साथ आपने अपने ऐसे जानने वालों को भी इस प्रोग्राम देखने की दावत देनी है। अल्लाह करीम हमें भी इस बाबरकत और मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अब आया कि अब आया जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का, चलेंगे मदीना। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, अब आया के अब आया जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का, चलेंगे मदीना, अब आएगा मक्का, चलेंगे मदीना। जी जनाब, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाबरकत और मुक़द्दस मकाम पर पहुंच चुके हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ इश्क व ज़ौक़ वाली बातें भी होगी, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ अशार की तरकीब रहेगी। तरीक़ेकार ये होगा कि दो दो आपसे सवालात होंगे, दो अशार पूछे जाएंगे। पहले शेर का सही जवाब आपको हुदूद हरम तक पहुँचाएगा, और दूसरे शेर का दुरुस्त जवाब आपको सहने हरम में पहुँचाएगा। आज एनिमेशन के ज़रिए पहुँचाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि एक बार अल्लाह पाक आपको हकीकी मानों में भी अपनी ज़िंदगी में हरम काबा देखना नसीब ज़रूर फरमाए। शुरू करेंगे हमारे उस्मान भाई से। उस्मान भाई, आपके लिए पहला शेर है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार ये कलाम है, जिसका शेर है, कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, रह न जाऊं मैं कहीं कर दो करम फिर या नबी, रह न जाऊं मैं कहीं कर दो करम फिर या नबी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, रह न जाऊं मैं कहीं कर दो
माशाल्लाह उस्मान भाई अपनी टैक्सी के ज़रिए एनिमेशन में हुदूद हरम तक पहुंच गए हैं। बड़ी ही बाबरकत और मुक़द्दस ज़मीन है जिस तक आप पहुंच गए हैं। अब वहां का अदब भी करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। बारी है हुनैन भाई की। हुनैन भाई के लिए शेर शामिल करेंगे। हमारे कंटेस्टेंट सही जवाबात देते चले जाएंगे, साथ ही साथ आप इनका ट्रैवल भी देखते रहेंगे, ये भी अपनी आंखों से देखते रहेंगे और आप भी मुलाहिजा करते रहेंगे। शेर है आपके लिए जनाब। आह पल्ले जर नहीं, रखते सफर सरवर नहीं। तुम बुला लो तुम बुलाने पर कादिर हो या नबी। आका तुम बुला लो तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। का काफिला भी पहुंच चुका है हुदूद हरम तक। वारी है अब्दुल कादिर भाई की। आपके लिए शेर है कि जो मदीने के लिए रहते हैं आका बेकरार। वो भी हो जाएं तेरे दर पर हाजिर या नबी। थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे। वो भी हो जाएं तेरे वो भी हो जाएं तेरे रोज़े पे हाजिर या नबी। वो भी हो जाएं तेरे रोजे पे हाजिर या नबी। बहुत ही खूबसूरत दुआ। काश हमारी ये दुआ कबूल हो जाए और हमें भी दरबारे नबी की हाजिरी नसीब हो जाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जो मदीने हमारे अब्दुल कादिर भाई भी हुदूद हरम तक पहुंच गए हैं। आह मेरा क्या बनेगा गर ना हज पर जा सका। अहमद रजा। आह मेरा क्या बनेगा अगर मैं रोज़े पे ना जा सका। आह मेरा क्या बनेगा गर ना हज पे जा सका। तुम बुला लो तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी। तमन्ना तो बहुत अच्छी है लेकिन अमीर अहले सुन्नत ने ये नहीं लिखा। आह मेरा क्या बनेगा गर ना हज पर जा सका। चलो रोशन सफर देखते हैं मालिको मौला कदर। टाइम खत्म हो गया। यहाँ पर कोई जवाब देगा जनाब? जी आतिफ भाई जवाब लेंगे। होंगी कुछ दिलचस्प बातें और मोहम्मद वहीद रज़ा तारी जामिअतुल मदीना में दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूं। अरे वाह माशाअल्लाह। हो करम अत्तार पर हो जाए हाजिर या नबी। हो करम अत्तार पर हो जाए हाजिर या नबी। बहुत ही खूबसूरत इल्तिजा। काश हमारी भी ये इल्तिजा कबूल हो जाए। अत्तार के सदके में हमें भी सफर हज नसीब हो जाए। जवाब आपका दुरुस्त है जनाब। क्या तोहफा दे रहे हैं आतिफ भाई? इंशाल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया की बहुत ही खूबसूरत पेशकश है नाम रखने के हकाम। इसके अंदर बहुत सारे इस्लामी नाम हैं और कौन सा नाम रखना चाहिए कौन सा नहीं रखना चाहिए, और इस हवाले से भी लोगों को बहुत सारे वसवसे होते हैं, तो उसका उन वसवसों की कार्ड भी इसमें मौजूद है और बहुत सारे इस्लामी नाम भी मौजूद हैं। ये किताब इन्हें तोहफे में दे रहे हैं।
चलें जी, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को यूनिक नाम रखने का बहुत ज़्यादा तजस्सुस भी होता है और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि कोई यूनिक नाम होना चाहिए। तो कैसे नाम रखने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि यूनिक के चक्कर में कोई ऐसा नाम रख लें कि फिर ज़िंदगी में मुश्किलात हो जाएं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए जनाब। कैसे नाम रखने चाहिए इस किताब के ज़रिए आप सीख सकते हैं। मकतबतुल मदीना से हदियतन आप तलब भी कर सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं उस्मान भाई की तरफ। उस्मान भाई, आगे का सफर करना है ना इंशाअल्लाह। सहने हरम के लिए अब आपके लिए सवाल है। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आ ना सका जो सोचा था। बहुत कुछ सोचकर सफर किया जाता है जनाब, बहुत सारी इल्तिजाएं, बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं सोचकर बंदा सफर करता है, लेकिन फिर जब काबे पे नजर पड़ती है तो होता क्या है, सुने। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आ ना सका जो सोचा था। इस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आ ना सका जो सोचा था, बाकी ना रहा फिर होश। इस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आ ना सका जो सोचा था, एहसास। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आ ना सका जो सोचा था। टाइम आपका भी खत्म हो गया है जनाब। यहाँ कोई जवाब देगा? जी, शम्बील भाई जवाब देंगे। इजहार अकीदत की धुन में इजहार तमन्ना भूल गया। इजहार अकीदत की धुन में इजहार तमन्ना भूल गया। क्या याद करके आया था? हो सकता है हमारे उस्मान भाई भी इसी ज़ौक़ में भूल गए हैं कि क्या याद कर आए थे, वो भी भूल गए क्या मांगना था। वो तो खैर इजहार अकीदत की धुन में इजहार तमन्ना भूल गया। जवाब दुरुस्त है शमील भाई का, माशाल्लाह। क्या तोहफा दे रहे हैं? शम्बीर भाई को मकतबतुल मदीना की खूबसूरत किताब तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा, परेशानियों का बेहतरीन इलाज इस किताब में मौजूद है। और अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, किस अंदाज में करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर करना चाहिए, बहुत सारी मालूमात इसके अंदर मौजूद है। ये किताब पेश कर रहे हैं। हम है हाजिर कीजिए हमसे सवाल, देखिए फिर कौन जी, करता है। बारी है हुनैन भाई की। हुनैन भाई के लिए सवाल है। एहसास के पर्दे लहराए ईमा की हरारत तेज हुई। सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह सर अपना सौदा भूल गया। सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह सर अपना सौदा भूल गया। जवाब दुरुस्त है। एहसास के पर्दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुनैन भाई को मुबारक हो, सहने हरम में पहुंचने वाले पहले कंटेस्टेंट बन गए हैं जनाब। हुनैन भाई सहने हरम तक पहुंच गए हैं। बारी है अब्दुल कादिर भाई की। आपके लिए शेर है। शायर कहते हैं, काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। सब होशो खिरद मफलूज हुए क्या मांगा क्या क्या भूल गया। सब होशो खिरद मफलूज हुए दिल ज़ौक़ तमन्ना भूल गया, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया। जी, यूं होशो खिरद मफलूज हुए दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज दुनिया भूल गया। यूं होशो खिरद मफलूज हुए दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। यूं होशो खिरद मफलूज हुए दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया।
अब्दुल कादिर भाई भी सहने हरम तक पहुंच गए हैं। एनिमेशन के जरिए हम देख भी रहे हैं कैसे हमारे कंटेस्टेंट आगे बढ़ रहे हैं। बारी है अहमद रजा भाई की। इसी कलाम का एक शेर है, शायर लिखते हैं, पहुंचा जो हरम की चौखट तक एक अब्रे करम ने घेर लिया। बाकी न रहा फिर होश मुझे, क्या मांगा क्या भूल गया। क्या मांगा क्या क्या भूल गया, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। पहुंचा जो हरम की चौखट पर एक अपने करम ने घेर लिया। बाकी न रहा फिर होश मुझे, क्या मांगा क्या क्या भूल गया। बाकी न रहा फिर होश मुझे, क्या मांगा क्या क्या भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दो कंटेस्टेंट सहरे हरम तक पहुंच गए हैं और दो हुदूदे हरम में हैं। इनका थोड़ा सा सफर ये तवील हो गया है। एक और शेर पूछ लें जनाब आपसे। आपको लिए बगैर तो हमने आगे सफर करना नहीं है। आसान सा शेर शामिल करते हैं। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, माशाअल्लाह। इनको भी सहने हरम तक पहुंचाएंगे। अहमद रजा भाई को भी पहुंचाना है। अहमद रजा भाई, आपके लिए इसी कलाम का शेर है, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सबसे माशाअल्लाह। आज के प्रोग्राम का हमारा ये खूबसूरत काफिला सहने हरम तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। मैं मक्के में फिर आ गया या। आज एनिमेशन के जरिए मक्के में हाजिरी तसव्वुर में दे रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें ये शुक्र अदा करना, हकीकी तौर पर मक्के में आकर फिर ये तेरा शुक्र अदा करते हुए गुनगुनाना नसीब फरमा कि मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। अब हमारे कंटेस्टेंट 30 मुख्तलिफ स्टेप्स के जरिए अपनी मंजिल की तरफ सफर करेंगे। ये 30 खूबसूरत स्टेप्स क्या होंगे, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये 30 खूबसूरत स्टेप्स क्या हैं। हम है हाजिर कीजिए हमसे सवाल। पहला
स्टेप होगा हरम गेट, दूसरा स्टेप होगा मस्जिद हराम, तीसरा स्टेप होगा जमजम कूलर, चौथा स्टेप होगा मताफ सीढ़ी, पांचवा स्टेप होगा बाबे उमरा, छठा स्टेप होगा मताफ, सातवां स्टेप होगा मकाम इब्राहिम, आठवां स्टेप होगा कोहे सफा, नौवां स्टेप होगा मसआ, 10वां स्टेप होगा दारे अरकम, 11वां स्टेप होगा मीलेन अख्दरैन, 12वां स्टेप होगा बाबे अली, 13वां स्टेप होगा बाबुल नबी, 14वां स्टेप होगा कोहे मरवा, 15वां स्टेप होगा बाबे मरवा, 16वां स्टेप होगा काबतुल्लाह शरीफ, 17वां स्टेप होगा काबतुल्लाह शरीफ की मुबारक छत, 18वां स्टेप होगा मुसल्ला जिब्राइल, 19वां स्टेप होगा रुकने इराकी, मीज़ाब रहमत, हतीम, रुकने शामी, मुस्तजार, रुकने यमानी, फिर मुस्तजाब, गिलाफे काबा, रुकने अस्वद, हजरे अस्वद, 29वां स्टेप होगा मुल्तजम और आखिरी स्टेप होगा बाबे काबा। जो कंटेस्टेंट सबसे पहले बाबे काबा पहुंचने में कामयाबी हासिल करेंगे वो इस्लामी भाई हमारे आज के मुकाबले के विनर होंगे, और जो आज के मुकाबले के विनर होंगे वो स्पेशल मुकाबले में अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लेंगे। स्पेशल मुकाबला हमारा 9वां मुकाबला होगा जिसमें विनर को इंशाअल्लाह उम्रे का टिकट भी दिया जाएगा। तो अब ये 30 स्टेप्स हैं कुरान पाक के 30 पारों की निस्बत से, ये 30 स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तरीकेकार ये होगा कि आपके डाइस पर काउंटर लगा है और काउंटर का बटन भी आपके हाथ में है, आप इसको ऑन करेंगे, काउंटर चलना शुरू होगा, फिर स्टॉप करेंगे कि जिस नंबर का काउंटर आपका स्टॉप होगा कुरान पाक के उस पारे से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप उसी नंबर के स्टेप पर पहुंच जाएंगे जिसका आपने दुरुस्त जवाब दिया होगा, और अगर आपने जवाब गलत दिया तो फिर आप अपनी पुरानी ही मंजिल पर खड़े रहेंगे। शुरू करेंगे हमारे उस्मान भाई से। इस वक्त हमारे चारों कंटेस्टेंट सहने हरम में मौजूद हैं। जरा स्क्रीन पर हमें दिखाएं कि चारों कंटेस्टेंट की लोकेशन क्या आ रही है। जी, सहने हरम में हमारे चारों कंटेस्टेंट मौजूद हैं। उस्मान भाई के लिए पहला सवाल करना है, लेकिन वो सवाल कौन सा होगा, किस स्टेप से होगा और कुरान पाक के किस पारे से होगा, उसका फैसला उस्मान भाई ने खुद करना है। जी, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं 5 नंबर। चलें जी, कुरान पाक के 5वें पारे से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे। अगर आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो आप डायरेक्ट बाबे उमरा तक पहुंच जाएंगे। सवाल आपके लिए है, बताइए सूरह निसा की किस आयत में गज़वा उहद का तज़किरा किया गया? आयत नंबर 88। आयत नंबर 88। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। आप पहुंचेंगे बाबे उमरा। कैसे पहुंचेंगे जरा एनिमेशन के जरिए देखते भी रहेंगे। तेरे दर के पैर लगाता रहूं मैं, तेरे दर के पैर लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। माशाअल्लाह, उस्मान अत्तारी बाबे उमरा तक पहुंच गए हैं। ये वो बाब है कि जहां पर मस्जिद आयशा से उमरा का इरादा करने वाले, वहां से नियत करने वालों को जो टैक्सी वगैरह होती है ये बाबे उमरा पर उतारती है। ये उसी रास्ते से बसा औकात काबे में दाखिल हुआ करते हैं। बहुत सारे आज़मीन यही सफ़र किया करते हैं। अल्लाह करे कि आपको भी अल्लाह मस्जिद आयशा से भी एहराम बांध कर उमरा करने की सआदत नसीब फरमाए। बढ़ते हैं हुनैन भाई की तरफ, बढ़ते हैं, देखते हैं कि हुनैन भाई पहले सवाल के जवाब में कहां तक पहुंचते हैं। जी हुनैन भाई, काउंटर का इस्तेमाल करेंगे। 3 कुरान पाक के 3रे पारे से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे और आपका दुरुस्त जवाब आपको जमजम कूलर तक पहुंचा देगा। खूब पेट भर के जमजम पिए जनाब, आज तसव्वुर में पिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हकीकी मायनों में भी हरम काबा में जाकर जमजम पीना नसीब फरमाए। सवाल है आपके लिए, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान, जब इमरान की बीवी ने अर्ज की, बताएं हजरत इमरान रदी अल्लाह अन्हु की अहलिया का नाम क्या है? हजरत हन्ना। इनकी अहलिया यानी बीवी का नाम हन्ना है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। रुख सुए का बाबा
پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ اللہ ہمیں حرم کعبہ میں جا کر پیٹ بھر کر زمزم پینا نصیب فرمائے. باری ہے عبد القادر بھائی کی. دیکھتے ہیں عبد القادر بھائی کا کاؤنٹر کہاں تک لے کے جاتا ہے. جی دوسرے اسٹیپ اور دوسرے اسٹیپ تک آپ کو پہنچنے کے لیے قرآن پاک کے دوسرے پارے کے سوال کا جواب دینا ہوگا. دوسرا اسٹیپ ہوگا مسجد حرام. واہ واہ سبحان اللہ. وہ بابرکت اور مبارک مسجد کہ جس کو دیکھنے کی تمنا, جس میں نماز پڑھنے کی تمنا 200 500 نہیں بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان اپنے دلوں میں لیے جیتے ہیں. سوال ہے آپ کے لیے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تم پر گواہ ہوں گے. بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی سے کیا مراد ہے؟ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ایمان کی حقیقت سے واقف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اس چیز کا پتہ ہے جو کسی کے دینی رتبے کو بڑھنے میں رکاوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے گناہوں کو جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ایمان کی حقیقت, ان کے اعمال, ان کا اخلاص, نفاق, یہ سب نور حق سے جانتے ہیں. جواب درست دیا ہے جناب. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آقا تم پہ کروڑوں درود. جواب درست ہے جناب. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ. باری ہے احمد رضا بھائی کی. کاؤنٹر کا استعمال کریں گے. دیکھتے ہیں کیا نمبر نکلتا ہے. 6 نمبر قرآن پاک کے چھٹے پارے سے آپ کے لیے سوال ہوگا اور آپ کا درست جواب آپ کو مطاف میں پہنچا دے گا. مطاف یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر طواف کیا جاتا ہے. سوال ہے آپ کے لیے بتائیے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں مسلمانوں کے لیے کیا حکم بیان کیا گیا ہے؟ اوفو بالعقود, عہد کا معنی عقود ہے, تمام عقود پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تمام عہد پورے کرو یعنی عقود کا معنی ہے وعدہ پورے کرو. ہمارے معاشرے میں بڑا ہی غلط جملہ ایک کہا جاتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا کیا جائے. یہ جملہ بالکل غلط ہے. وعدہ وہی ہے کہ جس کو وفا کرنا ہے اور دل و جان سے پورا کرنا ہے, کیونکہ جب وعدہ کر لیا تو پھر اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ ہمیں وعدے کی پاسداری نصیب فرمائے. احمد رضا بھائی مطاف تک پہنچیں گے جناب. جواب درست ہے. رحمتیں گئے مطاف پر بھی, اور رحمتیں گئے مطاف پر بھی, اور رحمتیں گئے مطاف پر بھی, اور بارش ہم بھی دلوں میں تمنا لیے جی رہے ہیں کہ کاش ہم بھی اس رحمت کی بارش میں نہائیں, ہم بھی اس رحمت کی بارش کے صدقے ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی بھی دور ہو جائے. باری ہے عثمان بھائی کی. 5ویں اسٹیپ باب عمرہ پر موجود ہیں. مزید آگے بڑھیں گے, کاؤنٹر کا استعمال کریں گے. دیکھتے ہیں کہ اس بار نمبر کہاں تک لے جاتا ہے. پھر دبائیں. 4 نمبر آگے بڑھیں گے جناب. آپ پہنچیں گے 9ویں اسٹیپ تک, یعنی آپ کے لیے قرآن پاک کے 9ویں پارے سے سوال نکالیں گے اور آپ کا درست جواب آپ کو مسعی میں پہنچا دے گا. مسعی کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں, لیکن پہلے سوال کا جواب دیجئے کہ سورہ انفال کہاں نازل ہوئی؟
सही कौल के मुताबिक सूरह अनफाल मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। सही कौल के मुताबिक सूरह अनफाल मक्के में नाजिल नहीं हुई जनाब, मदीना मुनव्वरा में नाजिल, क्योंकि ये मदनी है। गलती हो गई है। आप अपनी पिछली डेस्टिनेशन बाबे उमरा के मजे लूटिए। हम बढ़ेंगे हुनैन भाई की तरफ, देखते हैं हुनैन भाई कहां तक ले जाते हैं। जी, जमजम कूलर से मजीद आगे का सफर, काउंटर चल गया है जनाब, स्टॉप कीजिए काउंटर। 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी आप पहुंचेंगे बाबे उमरा अपने उस्मान भाई के पास। उसके लिए आपको दुरुस्त जवाब देना होगा कुरान पाक के 5वें पारे का। और सवाल आपके लिए है, बताइए, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे के माल ना खाओ। बातिल तरीके से माल खाने से क्या मुराद है? बातिल तरीके से माल खाने से मुराद ये है कि हर वो तरीका जो शरीयत में जायज़ ना हो, यानी हराम हो, यानी कि जुए के ज़रिए, चोरी के ज़रिए और सूद के ज़रिए और झूठी कसम के ज़रिए, झूठी वकालत के ज़रिए और झूठी वकालत के ज़रिए माल खाना ये जायज़ नहीं है। और इसी तरह नाच गाने की उजरत का माल भी खाना हराम है। और इसी तरह खुद नाफरमानी और गुनाह के मामलात में माल खर्च करके वो वाला माल खाना भी हराम है। बातिल तरीके से मुराद वो तरीके हैं कि जिससे माल हासिल करना शरीयत ने हराम करार दिया है, जैसे सूद, चोरी, जुए के ज़रिए माल हासिल करना, झूठी कसम, झूठी वकालत, खयानत, गज़ब के ज़रिए माल हासिल करना, गाने बजाने की उजरत, ये सब बातिल तरीके में दाखिल हैं और हराम है। यूं ही अपना माल बातिल तरीके से खाना, यानी गुनाह वो नाफरमानी में खर्च करना भी इसी में दाखिल है। अल्लाह पाक हमें इन तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ेंगे आप बाबे उमरा तक। हुनैन भाई का जवाब दुरुस्त है जनाब। तेरे हलों की क्या बात मौला, तेरे हलों की क्या बात मौला, तेरे हलों की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। हमारे अब्दुल कादिर भाई दूसरे स्टेप पर मौजूद हैं, मस्जिद हराम में मौजूद हैं। मजीद काउंटर के जरिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं किस स्टेप तक पहुंचते हैं। 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे, आप पहुंचेंगे मकाम इब्राहिम 7वें स्टेप तक। लेकिन उसके लिए 7वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। सवाल आपसे है, बताइए सूरह अनआम में कितने कलिमात हैं? सूरह नाम में 3100 कलिमात हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मकामे हज़रत खिलत पिदर सा मैं गिरबां पाया, कलेजे से लगाने को, कलेजे से लगाने को, हतीमा गौश मादर है, कलेजे से लगाने को, हतीमा गौश मादर है, हुजूरे काबा है। वाकई मकाम इब्राहिम पर अगर बंदा खड़ा रहे तो काबे पर भी बंदा खड़ा होता है, हुजूर काबा भी हाजिर होता है, मकाम इब्राहिम पर भी होता है। और उलमा बताते हैं कि पाकिस्तान वाले काबे की तरफ रुख करके जब नमाज पढ़ते हैं तो उनका रुख बाबे काबा की तरफ भी होता है, मकाम इब्राहिम की तरफ भी होता है। ये हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह करीम हमारे मुल्क को सलामत रखे। बढ़ते हैं अहमद रज़ा भाई की तरफ। अहमद रज़ा भाई इस वक्त मताफ में मौजूद हैं। मजीद आगे बढ़ेंगे काउंटर का इस्तेमाल करके।
इसको प्रेस करके छोड़ दिया करें ताकि दूसरी बार अगेन प्रेस करने पर ये होल्ड हो जाएगा। जी 2 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, आप पहुंचेंगे 8वें स्टेप पर दुरुस्त जवाब देकर, लेकिन कुरान पाक के 8वें पारे का दुरुस्त जवाब आपने देना होगा और आपका ये दुरुस्त जवाब आपको कोहे सफा पर पहुंचा देगा। सवाल है आपसे, बताइए इखलास की फजीलत में जो हदीस है, कोई एक हदीस सुना दीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस बात का मुस्तहिक मैं ही हूँ कि मुझसे डरा जाए, और जो मुझसे डरेगा तो मेरी शान ये है कि मैं इसे बख्श दूँ। नहीं, आपने हमारे सिलेबस में से हदीस नहीं पढ़ी। जवाब ये था कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान में ये 3 औसाफ हों उसके दिल में कभी खोट न होगा। नंबर 1, उसका अमल खालिस अल्लाह पाक के लिए हो। नंबर 2, वो आइम्माए मुस्लिमीन के लिए खैर ख्वाही करे। नंबर 3, मुसलमानों की जमाअत को लाजिम पकड़ ले। आप मताफ में ही मौजूद रहेंगे। बढ़ेंगे उस्मान भाई की तरफ। उस्मान भाई इस वक्त बाबे उमरा पर हैं, देखते हैं क्या आगे बढ़ते हैं या बाबे उमरा के ही मजे लूटने हैं। जी अगेन प्रेस कीजिए। जी 7 स्टेप आगे बढ़ेंगे, बाबे अली तक आप पहुंचेंगे। 12वें स्टेप का सवाल आपके लिए निकालेंगे जनाब, बहुत ही खूबसूरत स्टेप है और बाबे अली के लिए सवाल निकालने के लिए हमें कुरान पाक के 12वें पारे का सवाल निकालना होगा। सवाल है आपके लिए, सूरे हूद में कितने रुकू हैं? सूरह हूद में 12 रुकू, 20 रुकू, ना 12 ना 20 बल्कि सूरह हूद में 10 रुकू हैं जनाब। गलती कर गए हैं, बाबे उमरा के मजे लूटिए। बढ़ते हैं हुनैन भाई की तरफ। जी हुनैन भाई, बाबे उमरा पर आप भी मौजूद हैं। 7 स्टेप आपने भी 7वां स्टेप नंबर निकाला है। 7वें स्टेप पर मजीद आगे बढ़ने से आप पहुंच जाएंगे बाबे अली पर और आपके लिए भी कुरान पाक के 12वें पारे का सवाल निकालेंगे। देखते हैं ये जोड़ी अपनी जगह पर रहती है या आगे बढ़ जाते हैं। सवाल आपके लिए है, इस आयत का तर्जमा बताएं। इलल्लाहि मरजिउकुम, अल्लाह ही की तरफ तुम्हारा लौटना है। अल्लाह ही की तरफ तुम्हारा लौटना है। हुनैन भाई का जवाब, जोड़ी टूट गई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। बाबे अली पर पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? एनिमेशन के जरिए जरा देखते रहें कितने खूबसूरत खूबसूरत स्टेप्स इस दौरान आते हैं। अगले नजर की आँख का तारा अली अली, अगले नजर की आँख का तारा अली अली, अगले वफा के दिल का सगारा अली अली, अली अली हरदम 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 अली। फैज़ाने मुश्किल कुशा, फैज़ाने मुश्किल कुशा, फैज़ाने मुश्किल कुशा। माशाअल्लाह। चले जी बढ़ते हैं अब्दुल कादिर भाई की तरफ। मकाम इब्राहिम पर मौजूद हैं। मजीद आगे बढ़िए, काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, आप पहुंचेंगे दारे अरकम पर। 10वां स्टेप है और कुरान पाक के 10वें पारे से आपके लिए सवाल है। बताइए सूरह तौबा कहां नाजिल हुई? सूरह तौबा मदनिया है और बाज़ उलमा के नज़दीक जो आयत है लक़द जाअकुम रसूल से आखिर तक, ये बाज़ उलमा इसे मक्किया फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। दारे अरकम तक पहुंचेंगे। जरा देखिए ये दारे अरकम की लोकेशन क्या है, क्योंकि अब दारे अरकम जाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है। फजाओं में इसकी बरकतें लूटनी हैं, लेकिन कहां मौजूद है? जैसे ही आप सफा से सई के लिए मरवा की तरफ रवाना होंगे तो पहला जो दरवाजा आएगा यहीं पर बताया जाता है कि ये दारे अरकम था। और दारे अरकम ये वो जगह है कि जहां पर बहुत सारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने इस्लाम कबूल किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी को इख्तियार
تیار کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی کا ایک وقت دار ارقم پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا ہے. بڑھتے ہیں احمد رضا بھائی کی طرف. احمد رضا بھائی مطاف میں موجود ہیں اور آپ کے لیے اگلا سوال کہاں سے کرنا ہے فیصلہ آپ کا کاؤنٹر کرے گا. 4 اسٹیپ آپ آگے بڑھیں گے اور آپ پہنچیں گے دار ارقم پر. جی بڑا اتفاق ہے کہ دونوں برابر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں طرف سے. جی احمد رضا بھائی کے لیے 10ویں پارے سے سوال ہوگا. بتائیے سورہ توبہ میں کس مسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ مسجد قباء کی. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد. یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں نماز پڑھی جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد قباء میں نماز پڑھی اللہ پاک اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب, ماشاءاللہ. دار ارقم پر پہنچیں گے احمد رضا بھائی. بڑھتے ہیں عثمان بھائی کی طرف. عثمان بھائی اب تو آگے بڑھنا چاہیے آپ کو بھی. چلیں کاؤنٹر کا استعمال کریں. اب پھر پریس کیجیے. 3 اسٹیپ آگے بڑھیں گے آپ, لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو 8ویں اسٹیپ کا درست جواب دینا ہوگا. 8ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے, سورہ اعراف میں آیتیں کتنی ہیں بتا دیجیے. سورۃ الاعراف میں 206. اللہ اکبر. آپ نے کہا سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں, جبکہ سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ. سبحان اللہ. چلیں جی کوہ صفا تک پہنچ گئے ہیں. بڑی ہی بابرکت اور مبارک پہاڑ ہے. یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھیں. باری ہے حنین بھائی کی. حنین بھائی ماشاءاللہ سب سے آگے ہیں. باب علی 12ویں اسٹیپ تک پر موجود ہیں. مزید آگے بڑھیں گے, دیکھتے ہیں کہاں تک جائیں گے. جی کاؤنٹر چلائیے. ذکر ہوگا سرزمین پاک. 1 اسٹیپ آگے بڑھیں گے, 13ویں اسٹیپ پر پہنچیں گے اور یہ 13واں اسٹیپ ہوگا باب النبی, لیکن اس کے لیے 13ویں پارے سے سوال کا جواب دینا ہوگا. سوال ہے آپ کے لیے, بتائیے سورہ یوسف کو یوسف کیوں کہتے ہیں؟ سورہ یوسف کو یوسف اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی مبارک کے حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی کو اور ان کی حالات زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جی آپ کی حالات زندگی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا. جواب درست دیا ہے جواب. نین بھائی ہمارے مقابلے میں, آج کے مقابلے میں سب سے آگے ہیں, باب النبی تک پہنچ گئے ہیں. عبد القادر بھائی دار ارقم پر ہیں, 10واں اسٹیپ ہے اور صرف 3 اسٹیپ دور ہیں آپ حنین بھائی سے. دیکھتے ہیں اس بار آپ کا کاؤنٹر آپ کو کیا حنین بھائی سے آگے بڑھاتا ہے یا نہیں. 2 اسٹیپ آگے بڑھیں گے, باب علی پر پہنچیں گے اور باب علی پر پہنچنے کے لیے 12ویں پارے کے سوال کا جواب دینا ہوگا. سوال ہے آپ کے لیے, بتائیے سورہ ہود 12ویں پارے کے کس رکوع پر ختم ہوتی ہے؟ سورہ ہود 12ویں پارے کے 10ویں رکوع پر. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ. لے لیا مجھے آغوش نور میں, رغبت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں, رغبت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں.
جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ ماشاءاللہ، باری ہے احمد رضا بھائی کی۔ احمد رضا بھائی بھی دار ارقم پر تھے، دیکھتے ہیں مزید کتنا آگے بڑھتے ہیں۔ جی احمد رضا بھائی، 5 اسٹیپ آگے بڑھ جائیں گے، 15ویں اسٹیپ تک پہنچیں گے، اور 15واں اسٹیپ آپ کو باب مروہ تک پہنچا دے گا، لیکن اس کے لیے 15ویں پارے کا درست جواب بھی دینا ہوگا۔ سوال ہے آپ سے، بتائیے سورہ کہف میں کن آیات میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا؟ آیت نمبر 9 تا 26 میں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا۔ جواب درست دے کر آپ پہنچ گئے ہیں باب مروہ۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہو، سعی کر کے رب کو مناتا رہو، میں سدا شہر مکہ میں آتا رہو، میں یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی بڑا ہی بابرکت اور مبارک دروازہ ہے باب مروہ۔ یہ مسجد حرام کا وہ دروازہ ہے کہ جس میں عمرہ کرنے والے عمرہ ادا کرنے کے بعد جب مروہ پر ان کا 7واں راؤنڈ پورا ہوتا ہے تو پھر یہ اسی دروازے سے، جو کہ بالکل قریب ہی ہے باب مروہ، کوہ مروہ سے، پہاڑ جو ہے مروہ پہاڑ وہاں سے بالکل قریب ہے، تو یہیں سے باہر نکل کر پھر یہ آگے کے معاملات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ نظارے پھر سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ احمد رضا بھائی سب سے آگے بڑھ چکے ہیں، عثمان بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ عثمان بھائی کوہ صفا پر موجود ہیں اور آپ کے لیے اگلا سوال کرنا ہے ہم نے، لیکن فیصلہ آپ کے کاؤنٹر نے کرنا ہے کہ کہاں سے کرنا ہے۔ جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، مل کے آپ اس کو پکڑ کے نہ رکھیں، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں جی، آپ روکیں پھر جی۔ 3 اسٹیپ آگے بڑھیں گے آپ میلین اخضرین۔ میلین اخضرین پر پہنچنے کے لیے آپ کو 13ویں پارے کے سوال کا درست جواب، 11ویں پارے کے سوال کا درست جواب دینا ہوگا، اور 11ویں پارے کا سوال آپ سے ہے، بتائیے سورہ ہود کو اپنے سے پہلی سورت سورہ یونس سے کیا مناسبت ہے؟ سورہ ہود کی اپنے سے پہلی سورت سورہ یونس سے کیا مناسبت ہے؟ سورہ ہود کو اپنی سے پہلے والی سورت سورہ یونس سے اس طرح نسبت ہے کہ اس کے ابتدا، وصف اور آخر دونوں اسی طرح ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جس طرح پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اس طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور جس طرح پچھلی صورت میں ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ درست جواب یہ تھا کہ سورہ ہود کی اپنے سے پہلی سورت سورہ یونس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ معنی، موضوع، ابتدا اور اختتام میں سورہ یونس کے موافق ہے، اور سورہ یونس میں جن اعتقادی امور اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، سورہ ہود میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جی، انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب آپ کا درست نہیں ہوگا۔ کوہ صفا کے مزے لوٹیے۔ حنین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اس وقت باب النبی تک پہنچ چکے ہیں، مزید آگے کا سفر ہوگا کاؤنٹر کا استعمال کر کے۔ دیکھیے پھر کون 4 اسٹیپ آپ آگے بڑھیں گے، اور 4 اسٹیپ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو 17ویں پارے کے سوال کا درست جواب دینا ہوگا جناب۔ 17ویں پارے کے سوال کا جواب آپ دیں گے۔ سوال آپ سے یہ ہے، بتائیے سورہ حج کی اپنے سے پہلی سورت سورہ انبیاء کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ سورہ حج کی اپنے سے پہلے سورہ انبیاء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اس صورت میں مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر،
जी काउंटर भी चलाएं 16 सेकंड का, 19 सेकंड का। अच्छा जी, टाइम आपका खत्म हो गया है, 19 सेकंड का काउंटर पूरा चल चुका है। बाबुल नबी के मजे लूटिए। बढ़ते हैं हम अब्दुल कादिर भाई की तरफ। अब्दुल कादिर भाई बाबे अली पर मौजूद हैं, काउंटर चलाएंगे, मजीद आगे बढ़ेंगे। 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे आप और पहुंचेंगे कोहे मरवा। 14वां स्टेप है कोहे मरवा। कुरान पाक के 14वें पारे से आपके लिए सवाल है, बताइए सूरह नहल की कौन सी आयत में शहद की मक्खी का तज़किरा है? आयत नंबर 68। इस सूरत की आयत नंबर 68 में शहद की मक्खी का तज़किरा है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, माशाअल्लाह। पहुंचेंगे कोहे मरवा। ये वो बाबरकत और मुबारक 2 पहाड़ हैं कि जिनके दरमियान हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दौड़ी थी, और आपका दौड़ना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यास की वजह से था। अल्लाह पाक को अपनी इस नेक बंदी की अदा इतनी पसंद आई कि ता क़यामत आज़मीन के लिए, उम्रा और हज करने वालों के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना ये ज़रूरी करार दे दिया। बारी है अहमद रज़ा भाई की। अहमद रज़ा भाई बाबे मरवा पर मौजूद हैं। आपके लिए अगला सवाल हम करेंगे, लेकिन फैसला आपने करना है कि कहां से करेंगे हम। 6 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी पहुंच जाएंगे हतीम पर। 21वां स्टेप है, और 21वें स्टेप के लिए कुरान पाक के 21वें पारे से सवाल भी निकालना होगा। सवाल है आपके लिए 21वें पारे से, बताइए अलिफ लाम मीम इसका क्या माना है? ये हुरूफ मुक़त्ताअत में से एक हुर्फ है। इसकी मुराद अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जी, ये हुरूफ मुक़त्ताअत हैं, ये हुरूफ मुक़त्ताअत में से एक हर्फ है और इसकी मुराद अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। अहमद रज़ा भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर आगे का सफर। उस्मान भाई कोशिश करें, तेजी से करें। जिसमें देखेंगे खुदा का पाक। 7 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे जनाब। कोहे सफा से डायरेक्ट आप पहुंचेंगे बाबे मरवा। 15वां स्टेप होगा। 15वें पारे का सवाल आपके लिए है, बताइए सूरह बनी इसराइल को सूरह इसरा क्यों कहते हैं? सूरह बनी इसराइल को सूरह इसरा इसलिए कहते हैं कि इसकी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक का सफ़र का बयान किया गया है, और असरा के माना है रात में सफ़र करना, रात का सफ़र जो है उसको बयान किया गया। इससे सूरह असरा को, सूरह बनी इसराइल को सूरह असरा भी कहते हैं। चले मैं दुरुस्त पढ़ देता हूँ। इसरा का माना है रात को जाना, और इस सूरत की पहली आयत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रात के मुख्तसर हिस्से में मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस जाने का जिक्र है। इसी मुनासिबत से इसे सूरह इसरा कहा जाता है। जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं। पहुंचेंगे आप बाबे मरवा पर। सुभान अल्लाह, खूबसूरत एनिमेशन के जरिए देखिए। बढ़ेंगे हम उस्मान भाई की तरफ। जी उस्मान हुनैन भाई की तरफ बढ़ेंगे। आप मौजूद हैं इस वक्त बाबुल नबी पर। जी बाबुल नबी से मजीद आगे के लिए काउंटर चलाइए। देखते हैं मालिको मौला कदर। 7 स्टेप आप आगे बढ़ जाएंगे जनाब बाबुल नबी से। 7 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे मीज़ाब रहमत। 20वां स्टेप है मीज़ाब रहमत। सवाल है आपके लिए कुरान पाक के 20वें पारे से, बताइए सूरह कसस की कौन सी आयत मक्के में और मदीने के दरमियान नाजिल हुई? कौन सी आयत मक्का और मदीना के दरमियान नाजिल हुई? इन्नल लज़ीना फ़रदा से लेके आखिर तक ये वो आयत है जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब।
रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, क्योंकि मांगी है मैंने जितनी दुआएं मंजूर होगी मकबूल होगी, मीज़ाब रहमत था मेरे सर पर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह हमारी भी हाजिरी होगी। बढ़ते हैं अब्दुल कादिर भाई की तरफ। अब्दुल कादिर भाई माशाअल्लाह इस वक्त कोहे मरवा पर मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे जनाब, और आपके लिए सवाल कहां से निकालना है काउंटर फैसला करेगा। काउंटर सही से प्रेस नहीं कर रहे, थोड़ा सा जी। 7 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे जनाब, सुभान अल्लाह। कोहे मरवा से आप पहुंच जाएंगे हतीम पर, और अहमद रजा भाई भी हतीम पर मौजूद हैं। हतीम पाक के लिए आपको सवाल का जवाब देना होगा कुरान पाक के 21वें पारे का। आपके लिए कुरान पाक के 21वें पारे से सवाल है, बताइए सूरह लुकमान में रुकू कितने हैं? सूरह लुकमान में 20 रुकू। सूरह लुकमान में 20 रुकू नहीं है। सूरह लुकमान में सिर्फ 4 रुकू हैं। गलती कर गए हैं जनाब। चलें जी, अपनी पिछली डेस्टिनेशन मुबारक डेस्टिनेशन पर ही मौजूद रहेंगे। बढ़ेंगे हम अहमद रजा भाई की तरफ। अहमद रजा भाई हतीम पर मौजूद हैं और हतीम से आगे का सफर तय करना है। काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। 7 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे जनाब, 28वें स्टेप पर पहुंच जाएंगे, और 28वां स्टेप है हजर अस्वद। कुरान पाक के 28वें पारे से आपके लिए सवाल है, बताइए सूरह जुमा कितनी आयतें हैं इस सूरत में? सूरह जुमा में 11 आयतें हैं। सूरह जुमा में 11 आयतें हैं। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। कालक जबी की सजदाए दर से छोड़ाओगे, कालक जबी की सजदाए दर से छोड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। सुभान अल्लाह। हजर कहते हैं पत्थर को, और असवद ये ब्लैक कलर को कहते हैं। लेकिन जन्नत से जब ये बाबरकत और मुबारक पत्थर तशरीफ लाया था उस वक्त ये हजर अबियत था, उस वक्त हजर अस्वद नहीं था। अब इस हजर अबियत ने गुनाहगारों के गुनाहों को अपने अंदर स्ट्रैक करना शुरू कर दिया, और आज ये हजर अस्वद हो गया है। काश अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए इस बाबरकत और मुबारक पत्थर को बोसा देना नसीब फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो। अहमद रजा भाई ने बहुत तेजी के साथ अपने इस सफर को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं हम अपने उस्मान भाई की तरफ। उस्मान भाई बाबे मरवा पर मौजूद हैं, 15वें स्टेप पर मौजूद हैं। अभी 15 स्टेप दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से। सवाल आपके लिए करेंगे, लेकिन फैसला आपका काउंटर करेगा कि कहां से करेंगे। कोशिश सभी 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे। 20वां स्टेप होगा मीज़ाब रहमत, और 20वें स्टेप के लिए कुरान पाक के 20वें पारे से आपके लिए सवाल है। बताइए सूरह कसस को कसस क्यों कहते हैं? सूरह कसस को कसस इसलिए कहते हैं कि इसमें अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं। इसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान किया गया, इसे सूरह कसस कहते हैं। कसस के माना वाक़यात और किस्से हैं। जी, कसस का माना वाक़यात और किस्से हैं। बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं ना जनाब, क्या मौलाना हिकायतें सुनाते रहते हैं, कहानियाँ सुनाते रहते हैं, किस्से सुनाते रहते हैं। तो सुन लो भाई, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने किस्से और वाक़यात बयान किए हैं। सूरह कसस का माना ही वाक़यात और किस्से हैं, और चूँकि इस सूरत में मुख्तलिफ किस्से, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा और कारून का किस्सा बयान किया गया है, बहुत और भी इसके अलावा किस्से बयान किए गए हैं। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह कसस रखा गया है। जवाब उस्मान भाई का, ये काउंटर का इस्तेमाल करेंगे।
3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, आप पहुंचेंगे मुस्तजार पर। 23वां स्टेप है कुरान पाक के 23वें पारे से आपके लिए सवाल होगा। सवाल है, बताइए सूरह जुमर की फजीलत क्या है? सूरह जुमर की फजीलत ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तसलसल के साथ रोज़े रखते थे, हत्ता कि हम कहते कि आप इफ्तार नहीं करेंगे और आप रोज़ा नहीं रखते, यहाँ तक कि हम कहते कि रोज़ा नहीं रखेंगे और आप हर रात सूरह बनी इसराइल और सूरह जुमर की तिलावत फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने तसल्सल के साथ रोज़े रखते हत्ता कि हम कहने लगते कि अब आप इफ्तार नहीं फरमाएंगे और कभी आप रोज़ा ना रखते, यहाँ तक कि हम कहने लगते कि अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर रात सूरह बनी इसराइल और सूरह जुमर की तिलावत फरमाया करते थे। जवाब आपका दुरुस्त है जनाब। 23वें स्टेप पर पहुंचेंगे, मुस्तजार। मुस्तजारो मुस्तजाबो बीर ज़मज़म और मताफ, मुस्तजारो मुस्तजाबो बीर ज़मज़म और मताफ, फरहती में पाक के दोनों किनारों अब्दुल कादिर भाई सबसे आगे थे, आप सबसे पीछे रह गए हैं। 14वें स्टेप पर इस वक्त आप मौजूद हैं। आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल करेंगे। पिछली बार तो काउंटर ने आपका भरपूर साथ दिया था। अब सिर्फ 2 स्टेप आप आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन ये 2 स्टेप आपको बहुत ही खूबसूरत और मुकद्दस मकाम तक पहुंचा देंगे। 16वां स्टेप है और 16वें स्टेप का दुरुस्त जवाब आपको काबा मुशर्रफा पर पहुंचा देगा। 16वें पारे का सवाल है आपके लिए, बताइए सूरह मरियम को मरियम क्यों कहते हैं? सूरह मरियम को मरियम कहने की वजह यह है कि इसमें हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताया गया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में भी बयान हुआ है। जी, इस सूरत में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़मत, आपके वाक़यात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वाक़यात बयान किए गए। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह मरियम रखा गया। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब? पर सर है बड़ी सरकार में पहुँचे बड़ी सरकार में पहुँचे मुक़द्दर यावरी पर बड़ी सरकार में पहुँचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, बारिह अहमद रजा भाई की सिर्फ 2 स्टेप दूर हैं आप अपनी मंजिल से। अब मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको 2 का डिजिट लाना जरूरी है। कोशिश कीजिए अहमद रजा भाई, क्या आप मंजिल पर पहुंचेंगे या एक मर्तबा फिर अपने साथियों को मौका देंगे? जी, काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाहु अकबर, एक स्टेप आगे बढ़ गए। चलें, कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए। उस्मान भाई से सवाल करेंगे। उस्मान भाई, काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। मिजाब रहमत 20वें स्टेप पर मौजूद हैं। 1 डिजिट आगे बढ़ेंगे, 1 नंबर आगे बढ़ेंगे और आपका ये 1 नंबर आगे बढ़ना 21वां स्टेप होगा। 21वें पारे का सवाल आपको हतीम पर पहुंचाएगा। सवाल है आपसे, बताइए सूरह लुकमान में रुकू कितने हैं? सूरह लुकमान में 4 रुकू हैं। सूरह लुकमान में 4 रुकू हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हतीम पाक पहुंचेंगे। आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते नहीं ये धुन किधर की है। आगोश
शौक खोले गए जिनके लिए हकीमा शौक खोले गए जिनके लिए हकीम वो फिर देखते नहीं ये धुन किधर की है वो फिर देखते नहीं ये धुन दीवारे मुस्तजार पर खड़े हैं, बाबे काबा की मुस्तजार वाली दीवार पर हमारे हुनैन भाई हैं। आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। बरकत रखी हर एक जा 5 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। 28वां स्टेप हजर अस्वद तक आपको पहुंचा देगा। 28वां स्टेप कुरान पाक के 28वें पारे से सवाल का दुरुस्त जवाब देकर आप वहां तक पहुंच पाएंगे। बताइए सूरह हश्र की फजीलत क्या है? हज़रत माक़िल बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह के वक्त 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम कहा और सूरह हशर की आखिरी 3 आयतों की तिलावत की तो शाम तक तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्ते शाम तक के मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। और अगर वो उसी दिन उसका इंतकाल हो जाए तो शहीद की मौत मरेगा, और जो शाम के वक्त ये पढ़े उसकी फजीलत उसका मर्तबा भी यही है। हजरत माकिल बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुबह के वक्त 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम कहा और सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत की तिलावत की तो अल्लाह पाक 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो शाम तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। और अगर उसी दिन इंतकाल कर जाए तो शहीद की मौत मरेगा, और जो शख्स शाम के वक्त इसे पढ़े तो उसका भी यही मर्तबा है। तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। हुनैन भाई पहुंचे हैं हजरे अस्वद। सुभान अल्लाह। दो चुका ज़ुल्मत दिल बोसाए संगे अस्वद। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें हजर अस्वद देखना भी नसीब फरमाए, हजर अस्वद से अपनी आंखों को सैराब करना भी नसीब फरमाए। अब्दुल कादिर भाई 16वें स्टेप काबतुल्लाह शरीफ पर मौजूद हैं। आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल करेंगे। 7 स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब। बड़ा डिजिट निकाल लिया है। अगर सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया तो आप पहुंच जाएंगे मुस्तजार पर, और मुस्तजार कुरान पाक के 23वें पारे के दुरुस्त जवाब देने पर आप वहां पर पहुंच पाएंगे। सवाल है आपसे, बताइए सूरह ज़ुमर का मरकजी मजमून क्या है? गुफ्तगू में होंगे कुछ अशआर भी, गुफ्तगू में होंगे कुछ अशआर भी, और बयां ज़िक्र शफ़े अबरार भी। और 6 सेकंड। इसमें क़यामत की होलनाकियों के बारे में बयान है। सूरह ज़ुमर का मरकजी मजमून। अल्लाहु अकबर। इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इसमें अल्लाह पाक के वजूद, उसकी वहदानियत पर दलाइल जिक्र किए गए हैं और कुरान पाक को अल्लाह पाक की वही होना बताया गया है। गलती कर गए हैं जनाब। काबतुल्लाह शरीफ को छोड़कर कौन जाना चाहता है? थामे रखिए, बरकतें लूटते रहिए। बढ़ते हैं अहमद रजा भाई की तरफ। हजरे अस्वद पर मौजूद हैं, सिर्फ 2 स्टेप दूर हैं बाबे काबा से। क्या अहमद रजा भाई पहले पहुंचेंगे या हुनैन भाई भी हजरे अस्वद तक पहुंच चुके हैं? मुकाबला सख्त हो चुका है जनाब जी। एक मरतबा फिर किस्मत आजमाएंगे अहमद रजा, काउंटर का इस्तेमाल करेंगे। अल्लाहु अकबर। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये स्टेप भी आपको बड़ी ही मुकद्दस जगह पर पहुंचा देगा, और ये स्टेप का नाम है मुल्तज़म। 29वां स्टेप है। इसके लिए कुरान पाक के 29वें पारे के सवाल का जवाब आपने देना होगा। सवाल आपके लिए है, सूरह मुल्क की फजीलत सुनाएं। हज़रत खलील बिन मुर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में 30 आयतों की एक सूरत है जो इसकी तिलावत फरमाता है वो उसकी शिफायत करवाती है हत्ता कि उसको बख्शवा देती है। वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से है, और
آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ جواب آپ کا درست مانیں گے، آپ پہنچیں گے ملتزم پر۔ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ادب و شوق کا یا باغ مول جلا دیکھو، ادب و شوق کا یا باغ مول جلا دیکھو۔ مقابلہ بہت خوبصورت ہو چکا ہے۔ ملتزم پر پہنچے ہیں احمد رضا بھائی۔ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ایک چھوٹا سا دیوار کا ٹکڑا ہے، اسے ملتزم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر چمٹ کر دعا کریں اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مقام ہے، بہت ہی روحانی مقام ہے، اللہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ عثمان بھائی کی طرف بڑھیں گے، حتیم پر اس وقت موجود ہیں، 21واں اسٹیپ ہے۔ مزید آگے بڑھنے کے لیے کاؤنٹر کا استعمال کیجیے۔ جس میں دیکھیں گے خدا کا 3 اسٹیپ آگے بڑھیں گے جناب، آپ پہنچیں گے رکن یمانی۔ 24واں اسٹیپ ہے، قرآن پاک کے 24ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ میں کتنی آیات ہیں؟ ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال، ہم ہیں سورہ حامیم سجدہ میں ہم سے سوال، دیکھیے 8 سیکنڈ ہے۔ کون کرتا ہے کمال، دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال۔ جلدی کیجیے، کچھ تو بول دیجیے۔ سورہ حامیم سجدہ میں کوئی بھی ڈیجٹ بول دو بھائی، ٹائم تو ختم۔ 86 نہیں، 54 آیتیں ہیں۔ چلیں جی، آپ حتیم پاک پر پھیرے رہیے، حتیم پاک کی برکتیں لوٹتے رہیے۔ حنین بھائی کی طرف بڑھیں گے، حجر اسود پر موجود ہیں۔ 28واں اسٹیپ ہے حجر اسود، صرف 2 اسٹیپ دور ہیں باب کعبہ سے۔ حنین بھائی کے لیے سوال ہوگا، لیکن فیصلہ کاؤنٹر کرے گا کہ کیا سوال ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ پانے کی کریں کوشش سبھی، اللہ اکبر، 5 نمبر آ گئے ہیں جناب۔ 5 اسٹیپ اب آپ کے پاس نہیں بچے۔ عبد القادر بھائی کی باری ہے۔ عبد القادر بھائی، موقع دیا ہے آپ کو۔ حنین بھائی نے کعبۃ اللہ شریف سے مزید آگے بڑھنے کے لیے بڑے نمبر نکالیے، درست جواب دیجئے اور آگے بڑھ جائیے۔ گفتگو میں ہوں گے کچھ 5 اسٹیپ آپ آگے بڑھیں گے جناب، آپ کا ہو جائے گا 21واں اسٹیپ ہوگا حتیم۔ آپ کی قسمت آپ کو حتیم پر لے جانا چاہتی ہے، پچھلی بار بھی حتیم کے لیے سوال تھا۔ 21ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس آیت کا ترجمہ سنائیے۔ آیت واپس پڑھیے گا پلیز۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر، حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر، تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں، تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں جی، باری ہے ایک مرتبہ پھر احمد رضا بھائی کی، صرف 1 اسٹیپ دور ہیں۔ پہلے 2 نمبر کی ضرورت تھی تو 1 نمبر آ گیا۔
अब एक नंबर की जरूरत है तो नंबर 2 आ गया। चलें जी, कोई बात नहीं, उस्मान भाई को फिर चांस मिला है, फिर मौका मिला है आगे बढ़ने का। मजीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। आपका काउंटर 3 स्टेप आपको आगे बढ़ाना चाहता है। 24वां स्टेप है। एक मर्तबा फिर कुरान पाक के 24वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। सवाल है, बताइए सूरह हामीम सजदा का दूसरा नाम क्या है? उस्मान भाई ने लगता है सोचा ही नहीं था कि इतना आगे भी जाऊंगा। जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, जिक्र होगा सरज़मीने पाक का। टाइम आपका खत्म हो गया जनाब। बरकत रखी हर एक जान। चलें, दूसरा नाम याद रख लें, आपको याद रहेगा इंशाल्लाह जिंदगी भर। वो नाम है फुस्सिलत। और ये आयत के आयत नंबर 3 में भी ये कलमा मज़कूर है, फुस्सिलत। इस सूरत का दूसरा नाम है फुस्सिलत। हुनैन भाई की तरफ बढ़ेंगे। हुनैन भाई 28वें स्टेप पर हैं, 2 स्टेप दूर हैं। अपनी किस्मत आजमाइए। क्या आज क्या ये मुकाबला आप अपने नाम करेंगे? रहनुमाई लेंगे हम कुरान से। अल्लाहु अकबर। नंबर 2 तो आ गया है, लेकिन उसके लिए जवाब भी दुरुस्त देना होगा। अहमद रजा भाई ने 3 बार कोशिश की थी, सबसे पहले आगे बढ़ गए थे, सबसे पहले 28वें स्टेप पर पहुंच गए थे, फिर 29वें स्टेप तक भी आ गए, लेकिन इसी को कहते हैं कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अब हुनैन भाई के लिए 30वें पारे का सवाल भी करना होगा। अगर जवाब दुरुस्त दे दिया तो मुकाबला हुनैन भाई जीत जाएंगे, और अगर जवाब दुरुस्त नहीं मिला तो एक मर्तबा फिर आपको चांस मिलेगा। सवाल है आपसे, क्या पढ़ रहे हैं आप? खुदा का पाक दर मिलके करते हैं चलो। क्या पढ़े थे आंखें बंद करके? अच्छा बता तो दें, हो सकता है हमारे नाजरीन को भी कुछ क्लू मिल जाए कि जब बिल्कुल ऐसी घड़ी हो तो क्या पढ़ना चाहिए। दुआ कर रहे थे? अच्छा चलें, सवाल है आपसे, सूरह कद्र को कद्र क्यों कहते हैं? कदर के बहुत से माने हैं, अलबत्ता यहाँ उसकी अज़मत और उसके मर्तबे के बारे में, क्योंकि इस सूरत में सूरह कदर की शान बयान की गई है। इसी मुनासबत से इसे सूरह कदर कहते हैं। कदर के बहुत से माने हैं, अलबत्ता कदर से अज़मत व शराफत मुराद है, और चूंकि इस सूरत में लैलतुल कद्र की शान बयान की गई है, इस मुनासिबत से इसे सूरह कद्र कहते हैं। जवाब हुनैन भाई ने दुरुस्त देकर आज का मुकाबला अपने नाम कर लिया है जनाब। जब ये मुजदा सुना मैं मदीने चला, जब ये मुजदा सुना मैं मदीने चला, तेरे करम हो गया मैं मदीने चला। मेरे आका कदर होगा पेशे नजर,
शम्स कमर देखो देखो जरा देखो देखो जरा देखो देखो जरा मैं मदीने चला तेरे करम हो गया मैं मदीने चला मैं मदीने चला सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा ना करे। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे हमारे हुनैन भाई को। अल्लाह करीम आपको जल्द मदीने मुनव्वरा की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। ये खूबसूरत मोनूमेंट हमारे आपके साथ जाएगा, साथ ही साथ ये यादगार सर्टिफिकेट और माशाल्लाह आपका नाम हमारे स्पेशल मुकाबले के लिए सेलेक्ट हो चुका है। उस्मान भाई को भी बहुत बहुत मुबारक हो गिलाफ़े काबा के मुक़द्दस धागे, और ये सर्टिफिकेट आपके साथ भी जाएगा। अब्दुल कादिर भाई के लिए भी ये तोहफा है। अहमद रज़ा भाई ने भी काफ़ी कोशिश की। अल्लाह करीम आपको भी मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। तबरुकात मिलके करते हैं चलो रोशन सफर हुनैन भाई की माशाल्लाह। और अब इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेंगे। दुआ कीजिएगा अल्लाह करीम हमारी इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम मिलके नूरे कुरान की बरकतें पाते चले जाएं और सफर की मंजिलें तय करते चले जाएं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम